Hello everyone, welcome to Legal Sarthi. We have already initiated a series of lectures on Indian Penal Code, and we started with the most important topic, that is homicide. Chapter number 16, offences affecting human body, and homicide under that heading. We have already discussed section 299, which is culpable homicide, and main body of section 300, which is murder. Now we are going to discuss the exceptions that are appended to this section. Let's get a brief overview of what we have discussed so far. We discussed that for culpable homicide to be murder, the act must fall within any one of these clauses. Clause number 1, secondly, thirdly, and fourthly. If any act by which death is caused falls under any one of these clauses, it becomes murder. Murder is a special kind of culpable homicide. I have already discussed this, but let's see it again in brief. This circle is culpable homicide, and this circle is murder. Murder is culpable homicide, but with some special conditions or some special circumstances. If some special circumstances are present, which are those circumstances? Which are mentioned in clause 1, clause 2, 3, and 4. If those circumstances are present, culpable homicide becomes a special kind of culpable homicide known as murder. Now, if any one of the exceptions which are already provided in section number 300, I discussed earlier that in section number 300, there are 5 exceptions. If any one of these exceptions is present in section number 300, if any one of these exceptions apply to the case, it will reduce the case from murder to simple culpable homicide. Means the effect of the 4 clauses, the effect of any one of the 4 clauses present in those facts of the case will disappear, and if any exception is there, it is going to bring the act from the definition of murder to culpable homicide simpliciter. If the person is guilty under section 300, he is punished under section 302. Now, as any one of these exceptions is present, one of these 5 exceptions is present, it is going to mitigate the liability, and the person will be punished under section 30 and 4. Not 302, 30 and 4, which is culpable homicide not amounting to murder. Now let us begin with the exceptions. Exception number 1. When culpable homicide is not murder. इस एक्सेप्शन की जो हेडिंग है, ये लाइन ये अपने आप में ही क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं है. अभी तक सेक्शन 300 में वी हैव डिस्कस्ड व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, बट जैसे ही एक्सेप्शन स्टार्ट हुई तो फर्स्ट लाइन इज कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन. कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर? कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ मीन्स अगर कुछ कंडीशन प्रेजेंट है. अब वो कौन सी कंडीशन है जो एक्सेप्शन नंबर 1 में प्रोवाइडेड है? इफ द ऑफेंडर whilst deprived of the power of self control, person was deprived of his power of self control, ऑफेंडर का अपने आप पे कंट्रोल नहीं था. whilst means while,
यहाँ पे इट इज टू बी रेड एज वाइल। वाइल यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वाइल यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब ये कि जिस समय, जिस टाइम की ड्यूरेशन में, जिस समय जो ऑफेंडर है वो अपने सेल्फ कंट्रोल से बाहर था। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। अगर ऑफेंडर जिस समय वो अपने सेल्फ कंट्रोल से बाहर था, क्यों बाहर था? व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ हिज सेल्फ कंट्रोल? रीजन क्या था सेल्फ कंट्रोल ना होने का? बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। उकसाया उसको किसी ने, और जो उकसाया वो ग्रेव था, मीन्स सीरियस था। सीरियसली किसी ने उसे प्रोवोक किया, सडनली उसे किसी ने प्रोवोक किया, मीन्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। यहाँ पे मतलब कि ऑलरेडी प्रीमीडिएटेड कुछ नहीं था, उसी समय जिस टाइम पे ये एक्ट हुआ उसे किसी ने उकसाया। जिस समय वो प्रोवोक्ड था, उकसाया हुआ था, उस समय कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन। उस समय उसने क्या किया? डेथ कॉज की। कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन। कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन। किस पर्सन की डेथ कॉज की? जिसने प्रोवोकेशन दी। और causes the death of any other person by mistake or accident। या तो उस पर्सन की डेथ कॉज की जिसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी, या फिर उस पर्सन की डेथ के अलावा किसी और पर्सन की डेथ कॉज कर दी गलती से या एक्सीडेंटली। लेकिन किस समय? जिस समय वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से अपने सेल्फ कंट्रोल से बाहर था, उस समय। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल, उस समय, जिस समय वो अपनी सेल्फ कंट्रोल से बाहर था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से। सिंपली एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर तब नहीं है अगर ऑफेंडर डेथ कॉज कर देता है उस पर्सन की जिसने उसे उकसाया, या फिर किसी और पर्सन की मिस्टेक या एक्सीडेंट से डेथ कॉज कर देता है। किस समय? वाइल, जब वो अपने सेल्फ कंट्रोल से बाहर था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से। अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है इंडिया में। किसी ने किसी की मदर के बारे में कुछ ज्यादा गलत बोल दिया तो क्या होता है? जनरली जो बेटा है उसे गुस्सा आ जाता है। अपनी मदर के बारे में कुछ भी गलत सुन के कोई भी बेटा बेटी कोई भी है उसे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन ए है और यहाँ पे एक पर्सन बी है। बी, सी, डी, ये 3 पर्सन हैं। ठीक है, अब ये जो बी, सी एंड डी हैं, ये ए की मदर के बारे में काफी गलत बातें कर रहे हैं, या ए की मदर के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही गलत कह रहे हैं, जिसकी वजह से ए को बहुत गुस्सा आ जाता है। और ए क्या करता है कि अपने पास से एक कोई भी नाइफ उठा के बी के एब्डोमेन में थ्रस्ट कर देता है। तब ये कि ए पास से कोई भी नाइफ उठा के, मान लीजिए ये मार्केट है, यहाँ पे कोई नाइफ पड़ा हुआ है। ए क्या करता है, जब बी, सी और डी उसकी मदर के बारे में कुछ बहुत गलत बातें करते हैं तो ए नाइफ उठा के
बी के एब्डोमेन में पेनिट्रेट कर देता है और काफ़ी फोर्सफुली पेनिट्रेट करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, है ना। अब अगर इंजरी प्रेजेंट है और ए की वही इंटेंशन थी वही इंजरी कॉज करने की, तो हमने नहीं देखना कि ए की इंटेंशन थी बी को मारने की या नहीं, है ना। अगर उसकी वही पर्टिकुलर इंजरी कॉज करने की इंटेंशन थी तो दैट मीन्स कि ये थर्डली में फॉल हो गया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया था। दैट मीन्स ये क्लॉज थर्डली में फॉल हो गया। अब अगर ये क्लॉज थर्डली में फॉल हो चुका है तो ये हो गया ऑफेंस ऑफ मर्डर। अब ए की जो लायबिलिटी है वो मर्डर से कम होकर कल्पेबल होमिसाइड पे कैसे जाएगी। जो डिफेंस लॉयर है वो क्लेम करेगा एक्सेप्शन नंबर 1, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। एक्सेप्शन नंबर 1, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। डिफेंस लॉयर क्लेम करेगा कि बी, सी एंड डी ए की मदर के बारे में बहुत गलत बातें कर रहे थे, जिस वजह से ए प्रोवोक हो गया और जिस समय वो प्रोवोक होकर अपने सेल्फ कंट्रोल से बाहर था उस समय उसने बी के एब्डोमेन में नाइफ थ्रस्ट कर दिया जिससे बी की डेथ हो गई। तो इस एक्सेप्शन का एडवांटेज ए को मिलेगा और ये ऑफेंस मर्डर से मिटिगेट होकर कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया कि उस पर्सन की डेथ कॉज हुई हु गेव द प्रोवोकेशन। अब यहाँ पे बातें कर रहा था बी। सी एंड डी सिर्फ पास में खड़े होकर हंस रहे थे या मे बी सिर्फ बी को अकम्पनी किया और वो आए हुए थे, बी के साथ आए हुए थे और जो बातें थी गलत बातें थी, गलत वोकैबुलरी थी, वो यूज कर रहा था बी। तो ए यहाँ से नाइफ उठाता है। ये हम सेकंड सिनेरियो की बात कर रहे हैं। सेकंड सिनेरियो, एक और सिनेरियो क्या हो सकता है, ए यहाँ से नाइफ उठाता है और बी को मारने के लिए जाता है। उसी टाइम बी साइड हो गया और वो नाइफ लग गया सी को। बी साइड हो गया और वो नाइफ लग गया सी को। सी के एब्डोमेन में वो नाइफ फोर्सफुली थ्रस्ट हो गया, सी की डेथ हो गई। यहाँ पे भी जो इंजरी सी को हुई, इट वॉज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब लॉ कहता है कि अगर जिस पर्सन की डेथ कॉज करनी थी उसके अलावा आपने गलती से किसी और की डेथ कॉज कर दी, फिर भी ऐसे ही माना जाएगा कि जैसे आपने इसी पर्सन की जिसकी डेथ हुई है, लॉ ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि आपने इसी पर्सन की डेथ कॉज करनी थी। ठीक है, ये क्या है, ये है डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस जो सेक्शन 301 में प्रोवाइडेड है। ये भी हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि अगर ए ने यहाँ जैसे बी की डेथ कॉज करनी थी, बी साइड हो गया और वो नाइफ सी को लग गया, तो लॉ मान के चलेगा कि ए ने सी की ही डेथ कॉज करनी। तो यहाँ पे नाइफ लग गया, इंजरी सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, क्लॉज थर्डली। तो अब क्या है जो सी की इस डेथ के एक्ट को मर्डर से कम करके कल्पेबल होमिसाइड में लेके जाएगा, दैट इज एक्सेप्शन नंबर 1। डिफेंस ये क्लेम करेगा कि जिस टाइम पे बी ने ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी, उस टाइम पे ए ने गलती से, बाय मिस्टेक, गलती से बी की जगह पर सी को नाइफ से इंजर कर दिया जिसकी वजह से सी की डेथ हो गई। ठीक है, लेकिन अगर किसी और पर्सन की डेथ हो रही है, उस पर्सन के अलावा जिसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी, किसी और पर्सन की डेथ हो रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डेथ हैज टेकन प्लेस ड्यू टू मिस्टेक और एक्सीडेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द डेथ हैज टेकन प्लेस ड्यू टू मिस्टेक और एक्सीडेंट। ठीक है, तो आई होप दिस एक्सेप्शन इज क्लियर कि if the offender was deprived of his power of self control
because of grave and sudden provocation. And in that case, he has caused death of the person who gave him the provocation, or he has caused death of any other person by mistake or accident. In those circumstances, law will mitigate or law will lower down the offense from murder to culpable homicide. That clear? अब ये जो एक्सेप्शन है, it is further subject to 3 provisos. Exception number 1 is further subject to 3 provisos. Proviso number 1, first, that the provocation is not sought या voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person. What is the meaning of this proviso? कि ये जो provocation है जिसके चलते हुए ए ने बी की डेथ कॉज की, साइड पे हम थोड़ा सा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। बी ने ए की मदर के बारे में बहुत गलत बातें बोली, जिसके चलते ए ने बी की डेथ कॉज कर दी, है ना। अब ये जो प्रोवोकेशन है, लॉ ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए ने खुद उस प्रोवोकेशन को इनवाइट किया या वॉलंटैरिली पहले बी को प्रोवोक किया कि वो ए की मदर के बारे में ऐसे वर्ड्स बोले ताकि ए को बहाना मिल जाए बी का मर्डर कमिट करने का। मतलब ये कि ए ने खुद से उस प्रोवोकेशन को इनवाइट नहीं किया ताकि ए को बहाना मिल जाए बी का मर्डर कमिट करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि पहले ए ने बी की सिस्टर के बारे में बहुत गलत बातें बोली, ठीक है, ताकि बी ए की मदर के बारे में गलत बातें बोले, और फिर ए ने उस चीज का एडवांटेज लेकर बी का मर्डर कमिट कर दिया, एंड देन लेटर ही क्लेम्ड द डिफेंस ऑफ दिस एक्सेप्शन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, दैट बी हैड प्रोवोक्ड मी, so that is why I have committed his murder. This cannot happen. A cannot claim this defense if he has sought that provocation himself. He has invited that provocation himself as an excuse, as a bahana of killing B. I hope it is clear. Secondly, that the provocation is not given by anything done in the obedience to the law or by a public servant in lawful exercise of the power of such public servant. अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? लेट अस सी कि सेकंड प्रोवाइजो क्या स्टेट कर रही है। सेकंड प्रोवाइजो इज सेइंग कि जिस प्रोवोकेशन का डिफेंस लिया जा रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रोवोकेशन was not a result of anything which was done by a public servant while performing his duty or while being an obedient person to the law, while he was obeying the law or while he was lawfully exercising his duties. In those circumstances, if any act of public servant is done, that act cannot be said to give provocation to the offender. यहां समझते हैं कि मान लीजिए ये पर्सन है ए, एक्यूज्ड ऑफेंडर, ये है पी, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब जो ए है, ये एक क्राउडेड प्लेस में जहां पे पी ड्यूटी पे है,
P is a police officer, public servant, he is on duty. A एक crowded place में किसी लड़की को टीज कर रहा है, कोई गर्ल है जिसे ये टीज कर रहा है, ठीक है, छेड़ रहा है या फिर गर्ल पे असॉल्ट कमिट कर रहा है, ठीक है, या गर्ल की मोडेस्टी को आउटरेज कर रहा है। तो ए यहाँ पे इस गर्ल पे असॉल्ट कमिट कर रहा है या उसकी मोडेस्टी को आउटरेज कर रहा है। नाउ पी इज द पब्लिक सर्वेंट, it is his lawful duty to stop A from doing so, ठीक है, it is his lawful duty to stop A from doing so। P जाकर A को रोकता है ऐसा करने से, तो P ने क्या किया, lawful exercise of his duty। अब क्योंकि P ने A को रोका तो A प्रवोक हो गया, A को गुस्सा आ गया, A को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ए ने फील कर ली, ए प्रोवोक हो गया और उसने पी को नाइफ से मार दिया। अब ए ये डिफेंस ले रहा है दैट ही वॉज अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। वाई? बिकॉज पी स्टॉप्ड हिम और पी ट्राई टू फिजिकली स्टॉप हिम इन फ्रंट ऑफ पीपल। तो ए ने ये बोला कि मुझे इंसल्टेड फील हुआ एंड इंसल्टेड फील होने की वजह से आई गोट प्रोवोक्ड एंड ड्यू टू दैट व्हाट डिड आई डू, आई मर्डर्ड पी। तो इसे मर्डर से शिफ्ट करके कल्पेबल होमिसाइड में ले जाया जाए। दिस कैन नॉट बी डन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो प्रोवोकेशन ए क्लेम कर रहा है इट इज बीइंग गिवन बाय द पब्लिक सर्वेंट इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर एज सच पब्लिक सर्वेंट। वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, ही वॉज लॉफुली एक्सरसाइजिंग हिज ड्यूटी, सो ए कैन नॉट क्लेम दिस डिफेंस हियर। ओके, सेकेंड हम डिफेंस ले लेते हैं कि मान लीजिए कि जो ए है ही इज अ पर्सन एक्यूज्ड एंड ये जो पब्लिक सर्वेंट पी है ही इज अ ट्रैफिक पुलिसमैन, ठीक है। ए डज नॉट हैव अ लाइसेंस, ए डज नॉट हैव अ लाइसेंस, तो पी इसे स्टॉप करता है एंड पी इसका चलान काटना शुरू कर रहा है। The P is filling the ticket in order to give it to him. So what is he doing? He is obeying the law. Public servant is obeying the law. अब A जो है वो प्रोवोक हो गया कि ये क्यों मेरा चलान काट रहा है ना, तो A ने उसका मर्डर कमिट कर दिया। तो क्या अब A यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस ले सकता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो एक्ट के लिए ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस ले रहा है दैट इज बीइंग डन इन ओबीडियंस टू लॉ, या फिर वो एक पब्लिक सर्वेंट का एक्ट है इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर एज सच पब्लिक सर्वेंट। ओके, तो जहाँ पे ओबीडियंस टू लॉ है या फिर पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर है, वहाँ पे उस एक्ट से हम प्रोवोकेशन क्लेम नहीं कर सकते। I hope this is clear. Now let us come to the next proviso, which is the proviso number 3rd, that the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense. जो provocation है वो ऐसे किसी एक्ट से नहीं कॉज हुई जो एक्ट कोई पर्सन कर रहा था अपने बचाव में, अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए कोई पर्सन वो एक्ट कर रहा था, उससे किसी को भी प्रोवोकेशन कॉज नहीं हुई। ठीक है, अब इसको भी हम समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ए जो है he has a knife. Now what is A doing? He is assaulting B. धक्के मार रहा है B को। He is assaulting B. ठीक है, he is using criminal force to B.
यहाँ पे B A को रोकने की कोशिश करता है, B tries to stop him, B से रोक रहा है. What is B doing? B is exercising his right of private defense. ठीक है, B A को रोक रहा है, he is exercising his right of private defense. अब B के रोकने से A को प्रोवोकेशन हो गई. A got provoked कि B ने मुझे क्यों रोका. Why did B try to stop me? A got provoked. तो क्या वो ये प्रोवोकेशन का डिफेंस ले सकता है? बिल्कुल नहीं. A got provoked and killed B with the knife. B क्या कर रहा था? B was exercising his right of private defense. B was exercising his right of private defense. Okay. So A, what did A do here? A got provoked by that act and he killed B. So third proviso states that A cannot take the defense of such provocation. जो provocation किसी person के उसकी lawful exercise of right of private defense के act से arise हुई हो, पर्सन अपनी लॉफुली अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है, उससे उस एक्ट से जो प्रोवोकेशन अराइज हो, वो प्रोवोकेशन आपको डिफेंड नहीं कर सकती. इट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फॉर दिस सेक्शन और फॉर दिस एक्सेप्शन. ठीक है. तो फर्स्ट प्रोवाइजो क्या है कि वो प्रोवोकेशन ऑफेंडर ने खुद से वॉलंटरीली इन्वाइट नहीं की एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग द अदर पर्सन. सेकेंड है कि वो प्रोवोकेशन पब्लिक सर्वेंट के किसी लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर से नहीं आई या फिर किसी भी ऐसे एक्ट से नहीं आई जो करा गया है इन ओबीडियंस टू लॉ. और थर्ड है कि जो प्रोवोकेशन है वो किसी के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से नहीं आई. अगर इन तीनों में से कहीं पे भी वो प्रोवोकेशन फॉल करेगी, देन दैट प्रोवोकेशन is not a provocation within the meaning of this exception. Okay, so that provocation cannot defend the person under this exception. Now, explanation. Whether the provocation was grave and sudden enough to prevent the offense from amounting to murder is a question of fact. Question of fact means कि ये depend करता है on the facts and circumstances of the case. अगर जो प्रोवोकेशन है क्या वो इतनी ग्रेव प्रोवोकेशन थी, प्रोवोकेशन जो है वो क्या इतनी ग्रेव थी, इतनी सीरियस थी कि इस ऑफेंस को मर्डर से हटा के कल्पेबल होमिसाइड कर दिया जाए, ये डिपेंड करेगा ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस. ठीक है. सो दिस वाज द एक्सेप्शन नंबर 1. इसके साथ कुछ इलस्ट्रेशंस भी अपेंडिंग है और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है विच इज KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. एंड व्यूअर्स, आई जस्ट वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो गिव्स अ थम्स अप. एंड अगर कुछ भी ऐसा है दैट यू आर नॉट लाइकिंग अबाउट द कंटेंट और यू आर नॉट लाइकिंग अबाउट द वीडियो, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. We are open to all kind of suggestions.